हेलो टिक्की टाइम्स के सारे व्यूवर्स को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे चैनल को इतना लाइक किया, सब्सक्राइब किया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहते हैं और इनोवेटिव और प्रोफेशनल लोगों के इंटरव्यूज़ अपने चैनल पे लेते हैं। और जैसा कि बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि ईवी के ऊपर आपने बाकी लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं, आज हमारे साथ हैं बैटरी सप्लायर जो ईवी की बैटरीज, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर बैटरी में दे आर द पॉइनियर इन दिस इंडस्ट्री। नोएडा सेक्टर 63 में इनका ऑफिस है, रिन्यू वेज एनर्जी कॉरपोरेशन एलएलपी। और आज हमारे साथ हैं श्री जतिन ललित जी। जतिन ललित जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। और इट्स प्लेजर फॉर अस कि आज हमें आपका एक इंटरव्यू लेने का चांस मिला है और आपने हमें टाइम दिया है। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं अपने चैनल की तरफ से भी आपका। lithium ion batteries, which is a very important and essential part of any electric vehicle. Yes, of Either it course. will be two wheeler, three wheeler, four wheeler, or bus or anything. Right, it is. And you do excellent work to supply EV batteries to all manufacturers. हम जानना चाहते हैं आपसे, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हमारे चलेंगे। आप कितने साल से ये बिजनेस कर रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन। So we are in the manufacturing of lithium-ion batteries since last 1.5 years, and before that 6 months we were trading into lithium-ion batteries directly from China. But now, as the government is also supporting Make in India initiative, so we are also bullish on that, and we just want to be a part of the government initiative and manufacture and assemble all the batteries and most of all the things which can be available in India, and government से जितना support मिलता रहेगा we will manufacture here in India only। और इसलिए हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग में आपने अपना गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करी, अभी किसी तरह का गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है आपको या नहीं? as in government is supporting in lithium ion batteries, but I won't say the little bit the process is little bit slow these days. The government should support lithium ion battery manufacturers and electric vehicles simultaneously. So maybe whether it is like taxation policies or whether it is introduction of lithium ion batteries in two wheelers and three wheelers, because right now also lead acid batteries are still taking the entire market। क्या लगता है आपको कितना सक्सेस है ये ईवी आ रहा है, टर्न ले रहा है टोटली, जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो टोटली यू टर्न ले रहा है बिल्कुल, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव कर रहा है, तो क्या ये लगता है ये सक्सेस है? टू व्हीलर ईवी 100%। इंडस्ट्री सक्सेस है और ये पेट्रोल और डीजल का सब्स्टिट्यूट फ्यूचर में बनेगा? 100% बनेगा, 100% बनेगा। टेक्नोलॉजी इज evolving डे बाय डे, एंड with introduction of better quality cells, better quality technology, better quality parts in EV vehicles, these things are increasing day by day, and definitely this will take place of जैसे कि अभी कुछ petrol and कुछ diesel प्रॉब्लम vehicles। सुनने में आ रही थी, न्यूज़ में भी आया था, कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल रिक्शा में आग लग गई, स्कूटी में फायर हो गए, उसके बारे में कुछ कहना See, चाहेंगे? व्हाट इज द रीजन the फॉर दैट? government has taken a very good initiative in that by bringing AIS 156 standards in ICAT approvals. So battery man, I'll just like to say on screen with to all the battery manufacturers, please make your batteries according to AIS 156 standards. Don't use low quality materials. Don't use materials which are use fresh materials. Learn the way of manufacturing a good quality battery first. Take some, government is organizing seminars also how to assemble and manufacture batteries. You should take participation in that also। See, battery manufacturing में problem है सिर्फ, it is not about cells में आग लग रहा है, lithium is not the problem। Tesla is completely working on lithium since so many What are years। the major challenges in this sector? The major challenges as of now are coming from the lack in initiation of government policies। थोड़ा सा जितना जल्दी आप लेके आएंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज को, ई रिक्शाज में इंट्रोडक्शन ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, टू व्हीलर्स में द गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव टू से कि लिथियम आयन बैटरीज ही लगनी चाहिए तो हर कहीं टू ना कहीं व्हीलर घूम के फिर अंदर। के प्रॉब्लम वही है, गवर्नमेंट का स्लो प्रोसेस, जो कि हमेशा से देखने को आया है कि Because two गवर्नमेंट wheelers का। are still majorly dependent on lead acid batteries for two wheelers। उसमें प्रॉब्लम्स हैं, माइलेज की, माइलेज नहीं मिलता है, द कस्टमर्स आर नॉट वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड नहीं है। द गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव बट इट इज द प्रोसेस इज लिटिल स्लो।
लोगों का कहना है कि लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्या रीज़न है उसका? Sir, as I have already said that the initiation, the process is little slow. As the quantity will increase, the cost will definitely go down. As the market will come into Supply and mass, demand. yes. It is pure simple economics, the supply and demand, the first chapter of economics. जैसे जैसे demand बढ़ेगा, the quantities will increase, the cost will definitely come down. काफ़ी लोगों की हमारे पास शिकायतें और कंप्लेंट्स और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट भी आई है और काफ़ी लोगों का कहना है कि जो टेस्टिंग चार्जेस हैं बैटरी के ऊपर, जो गवर्नमेंट के कम और टेस्टिंग एजेंसी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। बिकॉज़ आप इस फील्ड में थोड़ा-सा इसके ऊपर कुछ एक लाइट डालना चाहेंगे कि चार्जेस ज़्यादा हैं और वो क्यों ज़्यादा हैं और होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? सर क्यों ज़्यादा हैं ये तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा. दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड टेस्टिंग एजेंसीज का जो चार्जेस हैं. बट येस, ऑफ कोर्स चार्जेस आर टू हाई. इट्स अ पेन एरियाज़ ऑफ Of course, because it is a whole new investment for a medium scale enterprise. कि if he is going for a two-wheeler battery iCat तो around 15 से 20 models हैं. If he is even going for 5 to 7 models जिसके लिए वो iCat AIS 156 standards पे कराना चाहता है, so the cost goes anywhere between 35 to 40 lakhs. So it is of course a pain in his area for him. It is a whole time new investment जो उनके लिए करना we possible already नहीं got है. the similar kind of feedback to others also कि the testing charges is too much high. Too much. मुझे लगता है इसको गवर्नमेंट को इसकी तरफ फोकस करना चाहिए. हमारा ये रिक्वेस्ट है जो मिनिस्ट्रीज है, कंसर्न डिपार्टमेंट है, आईकाइट है, एआरआई है और अदर जो भी टेस्टिंग डिपार्टमेंट है, वो जस्टिफाई करें सरकार को इसके चार्जेस ज़्यादा क्यों हैं. ये जस्टिफिकेशन हम मांगना चाहेंगे अपने चैनल के थ्रू. हम इसके लिए उनको लेटर भी लिखेंगे अपने फेडरेशन के थ्रू कि वो जवाब दें इस चीज़ का कि टेस्टिंग चार्जेस ज़्यादा क्यों हैं और वो जस्टिफाई है कि नहीं, और सरकार को भी इसके ऊपर जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए. एंड वी विल डेफिनेटली गिव सम सजेशंस आल्सो कि इसको किस तरीके से हम थोड़ा सा लो कॉस्ट में ला सकते हैं. वी हैव सर्टेन सजेशंस. सो वी जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप अपने चैनल के माध्यम से कभी दोबारा से हमारे साथ जुड़ें. ईवी बैटरीज में लिथियम बैटरीज is very essential part and almost is a 60% cost of the electric vehicle. Yes, not 60%, then at least it is 50 to 40 to 50% cost involves lithium ion batteries, and EV vehicle is successful only with lithium batteries. It is not successful with lead acid batteries. अभी जैसा कि न्यूज़ में भी आया है कि जम्मू में ये प्रकृति का एक वरदान है भारत के लिए कि वहाँ पे एक लिथियम का स्रोत पाया गया है. राइट. तो क्या लगता है कि प्रकृति भी चाहती है कि इंडिया में लिथियम आयन बैटरीज और ईवी व्हीकल का हो, और देखिए अभी तक जो चीज़ नहीं थी वो अचानक से प्रकृति ने दिया है. इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और आवर कंट्री इज फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. था तब भी पहले था और आगे और भी मिलेगा बाय गॉड्स ग्रेस. एंड बस अब ढूंढने का सिलसिला थोड़ा लेट शुरू हुआ है. अब ढूंढने लगे हैं तो आज जम्मू है, कल कहीं और भी मिलेगा, ज़रूर मिलेगा. तो जैसा कि जतिन ललित जी ने बताया कि ढूंढने पे ये निकले तो खाली जम्मू नहीं है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है. और ये चीज़ मिनिस्ट्रीज को सुनना चाहिए कि ढूंढना चाहे तो. और इंडिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका सूत्र नहीं है. जो चीज़ हम डिपेंडेंट करते थे कि इंडिया में नहीं है और हमें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता था, आज वो सूत्र है. और चाहिए सरकार को इसके ऊपर युद्ध स्तर पर, बिल्कुल जैसे कि उन्होंने कोरोना में युद्ध स्तर पर कार्य किया है, युद्ध स्तर पर ये कार्य होना चाहिए. और जल्द से जल्द टेंडर निकाल कर इसको कंसर्न कंपनीज को देना चाहिए कि जल्द ये लिथियम आयन सेल्स बनाएं, सो दैट कि जो हमारी डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज पर वो खत्म हो और रिड्यूस करें, हम लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट को रिड्यूस करें. तो आज हमारे साथ जतिन ललित जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच. आपने हमें टाइम दिया और हमारे चैनल पर आए. थैंक यू सो मच.